Hello friends, Khamagani. My name is Kavita Rathore and welcome to my channel Joy of Sharing. Joy of Sharing is starting a new segment called Conversations. It is compilation of interviews of prominent personalities coming from different walks of life. मैं आशा रखती हूँ हमारा ये विनम्र विनम्र प्रयास आप सबको बहुत पसंद आएगा and rather you will find it really fascinating and inspiring. Without making further ado, let me introduce to you our very first guest, Mrs. Tikendra Kumari Rajawat, a very well-known and famous personality in the field of education of Jaipur. She has been awarded by our ex-president, Mrs. Pratibha Kumari Patil, for her exceptional contribution in the field of education. Because of her exceptional love for the education field, she founded a school named My Own School in Shamnagar area of Jaipur, which is one of the leading and fine schools in current times. When she started, she just had 5 students. But आज की तारीख में My Own School is having more than 3,000 students. Isn't that amazing? Tikendra Kumari Rajawat belongs to the landlord family of Jamla, a place situated in northern Gujarat. She was born to Thakur Sahab Shri Mool Singh Ji Rathore and Anand Kuwar Ji Nathawat. She got married to a landlord family of Gugulao, a place near Jaipur, and the person to whom she got married to, a really great and humble personality, Thakur Sahab Shri Kuber Singh Ji Rajawat. Inside out, she is totally beautiful. Hard work and passion, they are the exact quotes for Mrs. Tikendra Kumari Rajawat. Let's get on to our one-on-one talk with herself. Before we do that, a small request. जॉय ऑफ शेयरिंग से जुड़े हुए रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाले कोई भी वीडियो से आप मिस आउट ना हो जाएं और कनेक्टेड रहें. एंड दैट विल हेल्प अस इन ग्रोइंग अवर जॉय ऑफ शेयरिंग फैमिली एज वेल. Feel free to like and share our videos. Thank you so much. Khamagini Hukam, thank you so much for taking out time for us from your busy schedule. और हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हुकम. You allowed us to have this interview. Thank you so much, Hukam. And a very warm welcome from the Joy of Sharing team. Hukam, very first question to you. Tell us something about your early life, your childhood, your parents, your upbringing. कि आपने ये जो भी कुछ अचीव किया है, आई एम वेरी श्योर कि ये सारी ही चीजें बहुत स्पेशल रही होंगी. आप आज जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, so how has it been all like, this your early life? Tell us something about that. यस कविता, मैं जामला विलेज मेरा, और वहाँ छोटा गांव था, लेकिन सारी फैसिलिटीज वहाँ अवेलेबल थी. बड़े बड़े घर, बड़े बड़े हाउसेस वगैरह, इस टाइप का गांव जामला गांव बहुत अच्छा है. और सिटी जैसी सारी फैसिलिटीज थी. उस टाइप धीरे धीरे डेवलप काफी हो गया. एंड एक जागीरी थी वहाँ पे जामला गांव में, यानी पहले जो जागीरदार कहलाते थे. तो मेरे दादो साहब जागीरदार थे, मेरे पापा उसके बाद में जागीरदार, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलता आ रहा. और मेरे दादो साहब बहुत ब्रेव थे. उनको मतलब वो इडर हिजाइनेस के पास में हमेशा वो रहते थे, और कहीं भी वो जाते थे तो इडर हिजाइनेस उनको लेके जाते थे, और सारा कल्चर बहुत अच्छा डेवलप किया. और दादो साहब को उन्होंने जागीरी दी. दादो साहब जहाँ उनकी लाइफ एक टाइम पे तो उनकी लाइफ भी सेव की. जो टाइगर उनके पे अटैक किया था, उन्होंने इतना ब्रेवली, उस टाइम पे इमरजेंसी में दादो साहब के पास गन वगैरह नहीं थी, वो हिजाइनेस के पास थी, और फिर भी उन्होंने टाइगर को पकड़ा और उनकी लाइफ सेव की. तो और भी मेरे दादू साहब को उन्होंने सोना नरेश बनाया. उस टाइम पे मतलब सोना नरेश होना बहुत बड़ी बात होती थी. एंड विलेज अच्छा था. फिर पापा जागीरदार बने, और हम लोग वहाँ पे मतलब 5 ब्रदर्स एंड 6 सिस्टर्स, ये सब हम वहाँ इकट्ठे साथ में रहते थे. भाभी साहब और सारे उनके मतलब बड़े भाभी साहब, यानी
तो हम छोटे छोटे थे, वो ब्रदर्स बड़े थे। तो इतना अच्छा सब एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। मेरे दादी साहब ग्रैंड मदर मतलब इतने मतलब एक्टिव थे। 88 इयर्स की एज में शायद उनकी डेथ हो गई थी 88 में, लेकिन वो इतने एक्टिव थे। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, यानी 4 o'clock उठना है तो उठना ही है उनको, और पूजा करनी है तो करनी है। इस टाइम पे खाना खाना तो खाना ही है, फिक्स टाइम, और फिक्स टाइम पे पूजा और सब कल्चर उन्होंने बड़ा अच्छा मेंटेन कर रखा था दादी साहब ने। एंड उसी हिसाब से हम लोग मम्मी पापा सब फॉलो करते थे। एंड पापा को दादू साहब ने बहुत अच्छा एजुकेशन दिया। उस टाइम पे राजकुमार कॉलेज में पापा की स्टडी हुई। पापा के व्यू बहुत अच्छे थे। रॉयल फैमिली वाले काफी मतलब कांटेक्ट में रहते थे मेरे पापा के। हमारा आना जाना रहता था, और हमारा जो भी कल्चर और रहना करना बड़ा मतलब अच्छा, मतलब पापा को पसंद था कि नहीं ऐसे रहना है, ऐसे घर ऐसे अरेंज करना है, ये चीज गलत जगह पे है, वैसे कुछ नहीं। तो हमको सारी चीजें ऐसे बहुत कुछ पापा से सीखने मिली। और फिर मेरी मम्मा भी मतलब पापा को देख के, मम्मा ने इतना एजुकेशन नहीं लिया था पापा जितना कि राजकुमार कॉलेज में पढ़ना, लेकिन पापा को देख के और लगता था कि पापा को ये सब चीजें पसंद है, तो मम्मा ने भी उसी हिसाब से फॉलो किया। और मम्मा तो और भी ज्यादा अच्छे होशियार हो गए फिर तो। और मम्मा ने मतलब हर तरीका से हम लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। और हम लोग सारे ब्रदर सिस्टर इतने थे, लेकिन कभी ऐसे ऐसा नहीं है कि लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं। सब साथ में खेलना उठना, और सारे फेस्टिवल सब साथ में पूरी फैमिली मिलके सेलिब्रेट करना, ये सब बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है सब साथ में रहने से, एक दूसरे को देखने से कि उसने ये कपड़े पहने हैं मुझे ऐसे पहनना है, मैं भी मतलब सही बनूं ऐसे। लगता था कि नहीं, मेरी एक सिस्टर बहुत अच्छा गाना गाती थी, तो उसको देख के फिर मुझे लगता था कि नहीं, ऐसे गाना मुझे भी गाना चाहिए। तो ये सारा फैमिली से एक मोटिवेशन तो मिलता ही है। बहुत अच्छी फैमिली, यानी कि आजकल ये बच्चों को कहाँ मिलता है। तो मेरा टाइम बहुत अच्छा निकला। उस टाइम पे जो चीजें मैंने सीखी मेरे चाइल्डहुड के टाइम पर, वो बहुत ही अच्छी आजकल बच्चों को नहीं सीखने मिलती है, वो सीखनी चाहिए। मैं बच्चों को यही बोलती हूँ स्कूल में भी कि नहीं, आप बड़ों का कहना मानो, बड़ों के पास बैठना। आजकल बच्चे बिल्कुल बड़ों के पास बैठना ही नहीं चाहते हैं, मोबाइल लेते हैं, टीवी पे बैठ टीवी देखते हैं, ये सब। तो मैं स्कूल में भी जब असेंबली वगैरह होती है तो उनको ये भी सब गाइड करती हूँ। एंड लाइक मैं जब छोटी थी तो मतलब ये सब चीजें मुझे बहुत कुछ सीखने मिली। और मेरे मम्मी हर मतलब वो रामायण की, सीता जी की ये सब स्टोरीज भी सुनाती थी। रुक्मणी मंगल मेरी मम्मी ने पूरा लर्न कर रखा था, तो रुक्मणी मंगल के सॉन्ग्स वगैरह है पूरा सुनाते थे। और उससे मतलब हमें क्या कि उनका जो राजा राम कैसे थे, सीता जी कैसे थे, पार्वती जी कैसे थे, कुछ तो मतलब छोटे बच्चों को ये जो बिफोर 15 इयर्स की एज में जो सीखने मिलता है, इवन 5 to 10 की एज बहुत मतलब बच्चों की प्रेसियस होती है। उस एज में जो मम्मी पापा सिखाते हैं या फैमिली का अच्छा सपोर्ट मिलता है, तो वो बच्चे को लॉन्ग लाइफ तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कहीं भी बच्चा चला जाए, लेकिन वो अपना कल्चर है, अपना मतलब जो भी रिलेशन है, और अपनी डिग्निटी जो भी है वो मेंटेन करके रखते हैं बच्चे। तो मुझे ये सब चीजें अब फील कर रही हूँ कि बहुत कुछ अच्छा सीखने मिला। जबकि ये बच्चों को अब, आज वाले बच्चों को भी ये सब सीखने और ऐसा गाइडेंस होना चाहिए घर में। और तो मैं बहुत कुछ है मेरी मतलब चाइल्डहुड का, मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा। मेरे काफी मतलब स्कूल में भी मैं जाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। स्कूल में भी जब भी कोई टीचर मुझे कुछ पूछती क्वेश्चंस, तो मैं उसको आंसर अच्छी तरह देती। लर्न करने का काम, मैं स्कूल में पढ़ने का मुझे बहुत शौक था। तो मम्मी पापा पढ़ाते थे हालांकि, पर मेरे दादी साहब बड़े वो थे कि नहीं, लड़कियों को अब क्यों बाहर, अब बड़ी बड़ी हो गई, अब बाहर नहीं भेजना है इनको। तो फिर पापा और मम्मी डिस्कस करते, नहीं नहीं अब तो टाइम चेंज हो गया, अपना टाइम अलग था। और फिर मेरी मम्मी पापा ने मुझे हिम्मतनगर भेजा पढ़ने के लिए। अच्छा स्कूल था, वहां मैं गई स्कूल में। तो क्या हुआ, फर्स्ट डे जब मैं गई तो मुझे मगन भाई करके एक सर थे, उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा।
तो बच्चे ऐसे शाई फील करते हैं, लेकिन मेरे मम्मी ने कभी, पापा वगैरह ने ऐसे सिखाया कि शाई फील नहीं करना, कोई पूछता है तो आंसर दो, आपको आता है, और आप ऐसे क्यों खड़े हो, सीधे खड़े रहो, ऐसे क्यों बात कर रहे हो, हर चीज में मम्मी पापा ऐसे ही मतलब इम्प्रूव करवाते थे। तो मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस था कि चलो ठीक है। तो सर ने पूछा, मैंने खड़े होके आंसर दिया। तो वो बात मुझे अभी तक याद है, सारे बॉयज एंड गर्ल्स सारे मेरी तरफ देखने लग गए। और जब इंटरवल हुआ ना, तो मैं अकेली मतलब मेरा लंच कर रही थी तब, सारी गर्ल्स बातें कर रही थी, देखो वो नई लड़की आई है, उसने तो आते ही आज ऐसा फर्स्ट क्लास आंसर दे दिया। तो मुझे वो बात सुन के और भी अच्छा लगा कि मैं मतलब बहुत कुछ कर सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और मुझे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन ऑल ऑफ सडन फिर बाद में मेरे, व्हेन आई केम इन 12th स्टैंडर्ड, मेरे फादर की डेथ हो गई। तो फिर सब लोग मेरे, स्पेशली मेरी दादी साहब कि नहीं नहीं अब उसको बुला लो वहां से, अब हॉस्टल वगैरह में ऐसे नहीं रखना है, उसको बुला लो। तो फिर मेरी पढ़ने की इच्छा थी और मम्मी की भी इच्छा थी, और मम्मी को दादी साहब का कहना भी मानना जरूरी था। तो उन्होंने फिर मेरे जो प्रिंसिपल सर थे, उनसे रिक्वेस्ट किया कि भी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, और हम लोग राजपूत फैमिली में फिर सबका सुनना भी पड़ता है। तो सर ने बोला नहीं, वो टिकेंद्र कुमारी तो बहुत होशियार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं छुट्टी देता हूँ 2-3 मंथ जो भी है, और उनको बोर्ड के एग्जाम में अलाउ करवा देंगे। तो मैंने घर पे बैठ के पढ़ाई करी और खूब पढ़ती थी, और मम्मा भी देखते थे कि पढ़ रही है कि नहीं। जैसे रात को मैं पढ़ती तो मम्मा उठ के आते और खिड़की से देखते कि क्या कर रही है मेरी बेटी, पढ़ रही है कि। और तो ऐसे मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, और मैंने आगे पढ़ाई करी, अच्छा पढ़ लिख के फिर मम्मा ने अच्छा लड़का देख के शादी कर दी। और मेरा ससुराल भी जागीरदार, मतलब मेरे फादर इन लो जागीरदार थे, 11 गांव का ठिकाना गुगोलाव। लेकिन कुछ अप्स एंड डाउन तो आते ही हैं लाइफ में, उनके कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया कि मतलब इतना प्रॉपर्टीज वगैरह उनके पास रही नहीं, जबकि उन्होंने 100 बीघा डोनेशन दूसरों को दिया है, डोनेट करा है। और वो लोग आज मतलब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जब पढ़ के आई तो मुझे लगा कि हाँ, मेरे पियर में तो सब कुछ है, यहाँ कुछ कमी है। लेकिन मैंने कॉन्फिडेंस मेरा लूज नहीं किया, क्योंकि मम्मी हमेशा बताते थे कि काम करना है, हार्ड वर्क, और कहीं भी कोई सी भी मतलब कंडीशन में अपन को एडजस्ट होना चाहिए। तो मैंने सोचा अरे क्या है ये, अब मैं इसको इम्प्रूव करूंगी, मेरे विलेज को घर बिल्डिंग तो बड़ी थी तो उसको मेंटेन मैं करूंगी, और ऐसे करके मैंने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद में एक दिन मेरे हस्बैंड से राजमाता मिले। वो मेरे हस्बैंड रामबाग पैलेस होटल जो जयपुर में है, ताज ग्रुप का है वो अभी, उसमें ही वॉज वर्किंग। तो ऐसे ही राजमाता ने मेरे हस्बैंड को वहां जॉब पे लगाया था, और स्टडी के लिए भी फर्दर उन्होंने काफी एनकरेज किया था कि नहीं तुमको पूसा इंस्टीट्यूट में जाना है, वहां तुमको कोर्स करना है। तो सारे कोर्स मेरे हस्बैंड ने किए हैं। और राजमाता वैसे होटल में ओपनली आया करती थी, तो एकदम पूछा कि भाई तुम्हारी वाइफ क्या कर रही है। तो क्या हुक्म, वो तो अभी कुछ नहीं कर रही है, घर में ही है। तो क्या नहीं, उनको भी होटल लाइन ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं मम्मा को पूछेंगे, वो लोग अलाउ करेंगे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप लेके आओ, उनका इंटरव्यू लेते हैं और वो ज्वाइन कर ले। राजमाता गायत्री देवी, पूछा मेरी हाँ, यस कविता। राजमाता गायत्री देवी, राइट? हाँ, राजमाता गायत्री देवी ऑफ जयपुर। ओके, तो वेरी फिर वो बहुत मतलब अच्छी थी। राजमाता सबको हेल्प करती थी, और सबको बोल रहे थे कि नहीं आगे आना। उन्होंने भी तो स्कूल एमजीडी महारानी गायत्री देवी करके जयपुर में स्कूल खोला। वो राजपूत गर्ल्स के लिए एक टाइम पर खोला था, क्योंकि राजपूत गर्ल्स को अलाउ नहीं था पढ़ना, बाहर निकलना ही अलाउ नहीं था। अब तो खैर सब एवरीबडीज आर गोइंग इन दैट स्कूल, एंड दैट स्कूल इज वेरी गुड स्कूल। तो इस टाइप से पूछा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने घर में जाके पूछा मदर इन लोग को, फिर मम्मी को मैंने पूछा। तो सब लोग बोले अरे रे बेटा, नहीं 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 नहीं, अपने तो घर में किसी ने जॉब किया नहीं है और अच्छा नहीं लगेगा, और ये सब लोग बातें बनाएंगे, इसके घर में कुछ नहीं है, क्या कमी हो गई, और ये जॉब क्यों, इस टाइप की पुराने लोग बातें करते थे। तो ऐसा लगा, फिर उनको समझाया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेरे हस्बैंड के साथ काम करूंगी, मैं अकेली अभी जॉब कर नहीं रही हूँ। तो फिर मम्मा एग्री हुए कि ठीक है, तुम हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ जॉब कर रहे हो एक ही जगह, तो यू कैरी ऑन।
मैंने जॉब स्टार्ट किया तो फिर ऐसा था कि मुझे डर था कि पता नहीं मैं सक्सेस होऊंगी कि नहीं। ताज ग्रुप का होटल है, इतना बड़ा होटल, और मेरी तो अभी सिफारिश से ही जॉब लगी है। तो मैं, होता है ना, बोलते हैं कि जिसको डर नहीं होता है वो आगे सक्सेस नहीं होता है। तो किसी का तो डर होना ही चाहिए। तो मुझे मेरे फैमिली का डर था कि कहीं मैं सक्सेस नहीं हूँ, फैमिली में सब मुझे पॉइंट आउट करेंगे। और मुझे क्या, शुरू से ऐसी आदत थी कि नहीं, मुझे जो कुछ करना वो अच्छा करना है और मैं सबसे अच्छा करूं। ऐसी मेरी मतलब छोटी थी तब से। इवन छोटी थी मैं, तब मैं ऐसे ड्रीमिंग कर रही थी कि मैं ससुराल, ऐसे ससुराल में जाऊं कि सबसे बड़ी मैं ही हूँ, मेरे सारे बाकी देवर वगैरह सब छोटे हूँ और मैं सबसे बड़ी हूँ। सब मेरा कहना माने, मैं उनको गाइड करूं। और हम लोगों के ठिकाने में ऐसे मतलब जो बड़ा होता है वो पहले आता है, बैठता है, ये सारा मुझे बहुत अच्छा लगता था कि नहीं कैसे रहना है। तो रियली पता नहीं गॉड ने सुनी होगी तो वैसा ही मिला। मेरे हस्बैंड सबसे बड़े थे एंड मदर इन लॉ मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत अप्रिशिएट करते थे। और मैं शायद शादी का ही बता रही हूँ। हाँ, तो शादी हो गई और वो जॉब के लिए जो राजमाता, तो मैंने जॉब भी डर से ही, डर के मतलब कहने का मतलब कि डर की अच्छी तरह आप जॉब करते हो, हार्ड वर्किंग और सिंसियरली जिस जगह आप काम करते हो उसको लॉयल तो रहना ही चाहिए। तो फिर मैं उस वे में ही काम किया कि जितने मेरे बॉस थे उनका कहना मानना, उनको कई बार गलत चीज होती तो बताना टाइम टू टाइम कि दिस इज गोइंग रॉन्ग एंड ऑल दिस थिंग। तो फिर स्लोली स्लोली मुझे बहुत अच्छा लगा और मैनेजमेंट को भी बहुत अच्छा लगा। तो दे सेंड आउट ऑफ इंडिया विथ माय हस्बैंड, out of India, that is Yemen, North Yemen, and capital city of North Yemen, Sana. And there was a Taj Group Hotel, Shiba Hotel. So we worked together, my husband and me, there nicely, and I enjoy also very good facility, everything, and salary wise also it was excellent. And then I worked there, and there also management हम लोगों के काम से बहुत खुश था, मेरे हस्बैंड के काम से और मेरे काम से। हम टाइम पर जाते आना सब कुछ पंक्चुअल रहते और सारे सजेशन भी उनको देते कि नहीं ऐसे करना, ये प्लांट्स यहाँ लगाना। मुझे डेकोरेशन का बहुत शौक है, होटल में होता ही है। और एक स्टाफ को कैसे कंट्रोल करना है, स्टाफ को कैसे मना के काम करना है, आपकी अंडर में लोअर स्टाफ काम कर रहा है तो उसकी क्या फीलिंग है, ये सब मुझे मतलब बहुत अच्छी तरह जज कर लेती थी मैं कि नहीं, इसने इतना काम किया तो इसको रेस्ट भी देना है, या आज इसको खाना खिलाना, होटल से खाना खा लेगा अच्छा वाला, कोल्ड कॉफी पी लेगा तो क्या होगा, मैनेजमेंट का कोई थोड़ा ही कम होता है। तो वो स्टाफ डबल काम करता है। तो ये सारी ट्रिक बहुत मजे से मैं एंजॉय भी करती थी, बहुत बढ़िया काम होता था होटल में। तो हम लोगों ने काफी अच्छा टाइम निकाला 5 इयर्स वहां पे, और अर्निंग सोर्स भी बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद में हम लोग जयपुर आए। जयपुर में मेरे हस्बैंड ने प्लॉट्स लिए और मकान बनाया। पहले हमारा जयपुर में मकान नहीं था, हमारा गांव में विलेज में बहुत बड़ा गढ़ है, पुराना गढ़ होता है वैसा, लेकिन जयपुर में नहीं था। वो मेरे हस्बैंड बहुत हार्ड वर्किंग थे, क्योंकि व्हेन ही वाज 16 इयर्स ओल्ड उनके फादर की डेथ हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने भी मतलब सारा मदर को पूरा सपोर्ट किया, छोटे छोटे ब्रदर्स को सपोर्ट किया। और मेरी जो फीलिंग थी वो मैंने भी मेरे छोटे छोटे देवर से बातें करती, उनको कभी कहानियां सुनाती। मेरे सबसे छोटे देवर तो 10 इयर्स ओल्ड थे जब मैं शादी करके आई, तो उनको कहानियां सुनाती, उनके बाल भी मैं ठीक करती, आप ऐसे रहो, ऐसे सुंदर लग रहे हो। तो बहुत अच्छा मतलब सब लोग मुझे काफी मतलब ऐसे सपोर्ट करते थे। ऐसा नहीं होता ना कि नहीं तो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ ने कोई लुक आफ्टर अच्छा नहीं करते, लेकिन आई वाज एंजॉइंग। उसके बाद में जब ये मैं बताया कि हम लोग वापस आ गए, तो वापस आए तो इधर मेरे हस्बैंड को बोला कि आगरा में ताज व्यू होटल है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ वहां जाओ, न्यू होटल है उसको सेटल करो। हम वहां गए, उसको सेटल करके आए 1 ईयर। एंड उसके बाद में ये एक होटल जयमल पैलेस और होटल ताज ग्रुप ने खोला, उसमें मेरे हस्बैंड को बोला कि आप इसमें एज अ फूड एंड बेवरेज मैनेजर एंड ऑल एंड ऑल यू हैव टू टेक केयर एज अ मैनेजर। और then me also, but I discussed with my husband ki no, I don't want to continue now enough, because I work a lot and I
मतलब जो भी है, मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है, मैंने एंजॉय भी किया है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ और करूं, जो लेडीज को करना होता है काम। मुझे लग रहा था कि मेरी टीचिंग लाइन ही बेटर रहेगी, क्योंकि मैं वहां पे भी, हमारे जो स्टाफ था उनको पढ़ाने का काम मतलब इजीली कर लेती थी। उनको ट्रेनिंग देनी होती थी तो मेरा ट्रेनिंग में ही मतलब कि भी आज ड्यूटी है कि मेरे को ट्रेनिंग देनी है स्टाफ को, इनको सेंटेंसेस वगैरह सिखाने हैं लोअर स्टाफ को। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्या करोगे घर में बैठ के अभी। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं स्कूल खोलना चाहती हूँ। पता नहीं ऑल ऑफ सडन मेरे दिमाग में स्कूल का आया। वो भी कुछ मिरेकल होता है किसी के साथ में, सबके साथ में कुछ न कुछ तो होता ही है मिरेकल। तो क्या कि मैं छोटी थी तब सरस्वती माता की पूजा भी करती थी, और 8th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करी। और वो पूजा भी मुझे, उसका सरस्वती का मंत्र एक मेरी फ्रेंड ने सिखाया कि ये मेरे जो बुआ है वो मुझे मुझे सिखाया उसने, तो तुम भी ये बोलो तो तुमको अच्छी विद्या मिलेगी। तो मैं बोलती थी, वो आज भी मुझे लर्न है और आज भी बोलती हूँ। हो सकता है मेरी फ्रेंड तो भूल भी गई होगी और किसी को आ भी नहीं रहा होगा, पर मैं वो बोलती थी और अभी भी मैं वो बोलती हूँ एवरी डे। एंड सरस्वती माता का कैलेंडर ही था, उसको पूजा कर अगरबत्ती करके स्कूल भगती थी। एक दिन वो मम्मी बता रही थी कि तुम पास नहीं होगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो टेंशन में सोई तो मुझे ड्रीम में सरस्वती माता भी दिखे। उस टाइम तो मेरी मम्मी बड़ी खुश होती थी कि तुमको तो बड़े भगवान जी दिखने लग जाते हैं, क्या बात है। और अभी भी मुझे काफी कई बार कृष्ण जी ऐसे दिखते हैं तो मम्मी बोल रही बेटा आजा आजा तू ससुराल से आई है, तेरे भगवान जी कितने कितने दिखे हैं। और मम्मी ऐसे पूछती थी तो मैं बताती थी और बड़ा एंजॉय करती थी। हालांकि कोई ड्रीम अच्छा आता तो नहीं बताते, लेकिन मैंने बोला क्या है बताना है, मम्मी को बता रही। तो सरस्वती माता ने ये भी बता दिया कि मेरे इतने मार्क्स है, मैं पास हो गई। दूसरे दिन रिजल्ट आया, मैं पास होगी। इट्स रियली वंडरफुल। और आज भी वो फोटो, पता नहीं मेरे शादी हो गई लेकिन वो कैसे किसी ने रखी, मेरे मम्मी ने और मेरी छोटी वाली सिस्टर ने उसको फ्रेम भी करी। तो वो थी, तो आज भी मैं उसको लेके मेरे स्कूल में मैंने लगा रखी है। तो अब इतने साल पुराने वो भगवान जी मेरे साथ ही है। तो मैं पहले तो जो मेरा सक्सेस होने का ये मंत्र है वो भगवान जी को हमेशा साथ लेके करती हूँ। और हार्ड वर्क तो है ही, ऐसे नहीं कि आप भगत बन जाओ और भगवान जी वो फल दे, वैसा कुछ नहीं। मेहनत बहुत करी है, जो भी काम हो किसी काम को मैंने छोटा नहीं समझा है। फिर मैंने स्कूल खोलने का बताया तो स्कूल खोली, मेरे हस्बैंड ने स्कूल में बहुत कुछ हेल्प करी। यस कविता जी, आपको कुछ पूछना है आगे? हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी कि आपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ही क्यों चूज किया, और वो चूज करने के बाद में आपके घर में से आपको कैसे सपोर्ट मिला, उनका रिएक्शन क्या था, आपके हस्बैंड का रिएक्शन क्या था? जो स्कूल खोलने के बाद वही पूछ रहे हैं ना आप? हुक्म हुक्म। ओके। तो मेरे हस्बैंड को जब मैंने बोला तो नेचुरली वो मुझे सपोर्ट तो करना ही था। मेरे हस्बैंड हर चीज में मुझे हेल्प करते थे, आराम से ऐसे देखते थे कि कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हुक्म और मैं इतना काम करती थी कि मतलब रात की कभी 2 भी बज रही है तो भी मैं स्कूल का काम करती हूँ। अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock उठ रही हूँ 2 बजे सो के भी। हुक्म। तो जब भी मेरे हस्बैंड हर चीज में मुझे कंफर्टेबल रखते थे। और मतलब सर्वेंट भी उन्होंने रख रखा था मेरे लिए, तो मैं घर भी मैनेज कर लेती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, और स्कूल का भी। लेकिन मुझे ज्यादा उठते बैठते सोते जब भी स्कूल के ही आइडिया आते थे कि आज ये करना, ये वो करना, या उस बच्चे ने ऐसी प्रॉब्लम थी उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी, हर चीज मुझे। कुछ साल 2 साल तो ऐसा लगा कि मुझे स्कूल के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो फिर वो स्कूल स्टार्ट हो गया, नर्सरी टू प्रेप स्टार्ट किया, 1 टीचर एंड 1 बाई जी। और 2 रूम्स थे। कभी स्टार्टिंग में तो देखो कितनी प्रॉब्लम आती है 2 रूम से। फिर मैंने अच्छा अच्छा उसको डेकोर किया, कुछ फर्नीचर तो मैंने खुद ने अपने हाथ से पेंट करा। और कुछ चार्ट्स बनाए, गार्डन में कुछ गमले इधर से उधर उठा के कभी रख रही हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये बुक के ऐसे कवर करूँ, पता नहीं क्या क्या सोचती थी। और बच्चों के लिए आज बच्चे स्कूल आएंगे तो ये टॉयज रखती हूँ, उससे खुश होंगे। इतना कुछ हर टाइम पे वही उठते बैठते खाते पीते स्कूल ही दिख रहा था। वो स्कूल फिर धीरे धीरे इतना सक्सेस हो गया कि मैं सोच ही नहीं सकती थी। मुझे इतना डर लग रहा था कि अभी तो 5 स्टूडेंट आ रहे हैं, फिर 11 ही हुए हैं, अभी 21, जब 100 सेंचुरी, तब तो फिर मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हुए, मुझे भी अच्छा लगा। टीचर्स हमने स्टाफ भी बढ़ाया। कन्वेंस का भी प्रॉब्लम आता था तो सारा कन्वेंस के लिए भी कई बार है ना मैं जाती थी ऑटो और वैन में बैठ के कि बच्चों को छोड़ना है उनके घर, कन्वेंस ड्राइवर को बताना है कि ये इनका घर है,
पेरेंट्स सेटिस्फाइड करना कि नहीं आप चिंता नहीं करें, आपके बच्चा सेफ है, और हर पेरेंट्स से बात करना, बहुत कुछ। स्कूल खोलना इट्स नॉट अ जॉब, बहुत कुछ करना होता है। और आप यदि ऐसे ही स्कूल खोल लेते हैं कि बड़ी बिल्डिंग आपको मिल गई स्टार्टिंग में और बच्चे मिल गए, तो वो इतना सक्सेस नहीं होता लॉन्ग लाइफ में। फिर बच्चों का एजुकेशन देखना और उनकी केयर करनी, ये सब पेरेंट्स वो चीजें देखते हैं। धीरे धीरे इतना अच्छा डेवलप हुआ कि मैंने सोचा कि अरे वाह, हम तो एक काम करते हैं कि अब मेरा तो स्कूल नर्सरी एलकेजी प्रेप तक का स्कूल है। उस टाइम पे भी नर्सरी एलकेजी प्रेप में मेरे 250 स्टूडेंट्स के आसपास हो गए, तो एक बहुत अच्छी बात है। 30 स्टूडेंट्स भी नहीं होते थे, नहीं तो स्कूल में किसी ने जो है कि स्कूल खोले हैं तो बहुत मुश्किल था। फिर मैंने सोचा कि सेंट जेवियर है, एमजीडी है, विद्याश्रम स्कूल है, ये जो टॉप स्कूल थे जयपुर में, इनमें क्या नर्सरी एलकेजी प्रेप नहीं होती थी। फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चों को एंट्री मिलती थी। तो अब बड़े बड़े डॉक्टर्स है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनके बच्चे पहले स्कूल तो ढूंढते ही है ना, तो वो स्कूल में, तो मैंने सोचा मेरी स्कूल में सारे बच्चे जितने हो गए, मैं उनको अच्छा सा मतलब एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारी करवाऊं। तो काफी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स लोगों के बच्चों का एडमिशन नहीं होता था। फिर मैंने जब ये तैयारी करना शुरू करी, स्पेशल सिलेबस मैंने सेट किया, स्पेशल बुक्स बनाई, और वो बुक्स आज तक मेरी बुक्स नर्सरी एलकेजी प्रेप में मेरी ही बुक्स चल रही है। हम लोग कोई सप्लायर बुक सेलर की नहीं लेते हैं। नर्सरी एलकेजी प्रेप के सिलेबस मैंने सेट किए हैं, और वो सेट किए हुए सिलेबस इतने अच्छे हैं कि अभी जयपुर में नियरली 50-60 मे बी मोर देन, आई एम नॉट श्योर, उनमें जो मैंने बुक्स बनाई है वो बुक्स चल रही है नर्सरी एलकेजी प्रेप में। That's really तो amazing. वो जो मेरा बुक सेलर है वो तो बोल रहा अरे मैम बहुत वंडरफुल, ये सब बहुत वो खुश है। मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम जो करना है करो, विद्यादान सबसे बड़ा दान है, आई डोंट माइंड। ये बता रहे हैं कि इनिशियली इट वाज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम योर एंड एंड इतनी आपकी टीम भी एक्सपैंडेड नहीं थी, यू डिडंट हैव सो मेनी टीचर्स। तो आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते थे? लाइक यू वर अ मदर आल्सो, अ वाइफ आल्सो, यू हैड टू लुक आफ्टर घर का काम वगैरह, और फिर ये आपका प्रोफेशनल करियर जो आप डेवलप कर रहे थे। सो ये दोनों का एक वर्क लाइफ संतुलन कैसे रखते थे आपके निजी जीवन में और आपका जो व्यवसाय आपने अपना रखा है उसका? तो आप संतुलन कैसे करते थे? जैसे अभी आई एम अ न्यू मॉम, सो आई मुझे बहुत ज्यादा कई बार आई एम लाइक फेसिंग हार्ड टाइम कि कैसे सारी चीजें कैसे करें। तो आप ये कैसे करते थे हुक्म? हाँ, उसमें जरूर आपको फिर मैं जल्दी उठती थी, जल्दी उठ के मेरे सर्वेंट थे तो उसको भी बताना तो होता है ये करना है, तो मैं पूरा प्रॉपर देखती, घर में भी आके देखती कि नहीं उसने कुछ तो नहीं किया, सर्वेंट ने सारा कुछ गाइड करती, कुछ थोड़ा बहुत मैं भी करती, ऐसे नहीं कि मैं मतलब बिल्कुल पानी का ग्लास भी नहीं उठाऊं, फटाफट काम हो जाता था। जब एक्साइटेड यानी कि जो आप खुशी से काम करते हो ना, उसमें आपको बिल्कुल थकान नहीं लगती है। ये मुझे इतना अच्छा लगने लग गया कि नहीं मैं सब कुछ कर सकती हूँ अब। तो फिर मेरे को सुबह जल्दी उठना, आफ्टरनून में भी काम कर रही हूँ, रात को देर से भी सो रही हूँ मैं, 2 बज रही है 3 बज रही है तो कोई फर्क नहीं है, 2 घंटे सोए फिर उठ गए, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे लिए। और सारा मैनेज हो जाता था, स्कूल का ऐसे इधर, बिकॉज आई वर्क इन होटल, एंड होटल में मुझे सारे टाइम इधर भगना उधर भगना, उस फ्लोर पे जाना उस फ्लोर पे सुपरविजन करना है। तो वो मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई थी, बहुत एक्सपीरियंस हो गया था मेरा, और शुरू से मम्मा ने भी अच्छी ट्रेनिंग दी थी, है ना। तो ये सारी चीजें मेरे बहुत काम में आई, और मैंने उसको मतलब अच्छा, और टचवुड मेरी हेल्थ भी कभी मुझे मतलब कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी आज तक, 65 इयर्स की एज में कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं। तो ये भी एक हेल्थ भी आपकी, हेल्थ इज वेल्थ, तो ये भी मुझे हेल्थ ने भी साथ दिया, और हार्ड वर्क तो था ही, हेल्थ अच्छी हो और हार्ड वर्क नहीं करो तो किस काम का। तो मुझे सब चीज का शौक, मुझे तैयार होने का भी शौक, कपड़े पहनने का शौक, डेकोरेशन करने का शौक, हाउस को भी मैं अच्छा टिप टॉप रखती थी, ऐसे नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ तो मेरा अच्छा, तो इस टाइप से सारा चलता रहा। और बेटे को भी मैं टाइम पर, यस उठा, स्कूल गया, टिफिन उसका पैक हुआ कि नहीं, अब है ना मैं पूरा जब वो स्कूल से आ रहा है तो मैं सारा काम खत्म फिनिश करूं और उसके साथ बैठूं, उसके पास बैठूं, उससे बातें करूं। मेरे हस्बैंड भी उससे बातें करते, तो मेरे हस्बैंड जाते थे साथ में, तो हम मेरे हस्बैंड ने बहुत पूरा ध्यान दिया है, हम दोनों ने मिलके
इतनी मतलब अच्छी लाइफ हो गई हमारी कि मैं मतलब कह नहीं सकती हूँ। आज मैं भगवान से यही बोल रही हूँ कि मैंने स्वर्ग नहीं देखा है, लेकिन मुझे स्वर्ग यहीं देखने मिल रहा है। हे भगवान, मुझे स्वर्ग, तेरा स्वर्ग नहीं चाहिए, तूने नहीं रखा है स्वर्ग। वंडरफुल, वंडरफुल, क्या बात है। वेरी नाइस हुकम। सो तो किसी चीज करना के अंदर हुकम। सो आई वाज सेइंग कि कभी ऐसे हेलो, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े, लाइक जैसे आप बता रहे हैं कि आपने स्टार्ट करी स्कूल, तो वाज देयर अ टाइम कि आपको थोड़ा सा लगा हो कि मैंने ये सही नहीं किया, शायद मुझे नहीं खोलना चाहिए था, या एक दो साल बाद आपको लगा कि अभी ये तो सही नहीं चल रहा है, या इट वाज कॉन्स्टेंटली ग्रोथ फॉर यू? नहीं नहीं, बहुत प्रॉब्लम आई। मुझे इतना टेंशन हो गया कि मैंने स्कूल क्यों खोला। अब सब लोग मुझे हंसेंगे कि लो स्कूल खोला था ना जॉब छोड़ के, क्या कर लिया। बहुत टेंशन होती थी। और मेरी एक जो ठिकाने के जो कवरानी साहब थे नवलगढ़ वाले, उनसे भी मैंने बात की कि नहीं नहीं, अब ये स्कूल आप चलाओ, मेरे से नहीं चलेगी, अब मैं नहीं चलाती। और फिर मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं नहीं, वेट करो, हर चीज में मतलब वेट तो करना ही होता है। हुकम। तो फिर पता नहीं ऑटोमेटिकली मतलब विद इन 1-2 मंथ में तो इतना डेवलपमेंट हुआ। नहीं तो मैं काफी मतलब होता, कभी एक बच्चा जैसे कि उसको टीसी लेने कोई आता तो मुझे लगता वो बच्चा टीसी लेके गया, हालांकि उसका मतलब ट्रांसफर केस पेरेंट्स का होगा, लेकिन मुझे राइट। पहले टेंशन हो जाता था कि स्कूल से हुकम। बच्चा छोड़ के गया है। तो हुकम। प्रॉब्लम आई। नेचुरली स्कूल में तो होता ही है, क्योंकि इतने सारे पेरेंट्स हैं, सबके व्यू अलग अलग होते हैं। किसी बच्चे की लग भी जाती है स्कूल में, घर में भी तो बच्चे खेलते करते गिर जाते हैं, कभी लग जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम है। तो स्पेशली मुझे ये प्रॉब्लम जरूर हरदम टेंशन यही रहता था कि किसी बच्चे के लगे नहीं, चोट नहीं आनी चाहिए। हुकम। तो वो टेंशन तो मेरे दिमाग में हमेशा। और फिर कन्वेंस में भी कई बार ऐसे सुनते थे कि नहीं वो वैन का एक्सीडेंट हो गया, वो ये सब। तो मैंने स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन मैंने सोचा ये तो सब बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। फिर नहीं, मेरे हस्बैंड ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना टेंशन नहीं करो। तो आज तक टचवुड मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर वो मैं टेंशन से दूर हो गई और मैं अपने काम में ही बिजी रही। और फिर इतना टेंशन नहीं, पर टेंशन जरूर स्कूल, मुझे लगता है सभी लोगों को होगा स्कूल जो खोलते हैं। स्पेशली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ कि स्कूल ऐसी चीज है कि मतलब आप एक टाइम आता है अच्छी तरह रह रहे हो आप, आपके अंडर में स्टाफ काम कर रहा है, स्टाफ अच्छा है, आप उसको स्टाफ को इतना अच्छा कुछ दे रहे हो, तो वो भी खुशी होती है कि स्टाफ को आपकी वजह से काफी लेडीज स्कूल में आके काम कर रही है, और वो इतना मतलब खुश है कि नहीं आपकी वजह से। आज भी कुछ टीचर्स बोलती है आपकी वजह से हमारे बच्चे पढ़ पढ़ गए हैं, बड़े हो गए हैं। तो ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि किसी को कुछ देते हैं तो खुशी खुशी होती है, देने से ज्यादा खुशी होती है बल्कि। तो इसमें देने की चीजें बहुत है स्कूल में, तो ये तो है। लेकिन उसके साथ में टेंशन वाली भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आप ऐसे नहीं कि आपका स्कूल अच्छा चल रहा है बस आप रिलैक्स करो कि आज ऑफिस नहीं जाओ, नहीं, टाइम पर जाना है आपको स्कूल में। आप एक्टिव है, आप राउंड ले रहे हैं, आप बच्चों से बात कर रहे हैं, असेंबली आप पर्सनली अटेंड कर रहे हैं, ये सब कुछ करना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो फिर क्या है कि आप एक्टिव नहीं हो तो आपका स्टाफ भी इतना एक्टिव नहीं रहेगा, और स्टूडेंट्स में भी वो नहीं होगा। आप अच्छी तरह तेज चल रहे हो तो स्टूडेंट्स भी देखेंगे ओ मैम चल रही है देखो, तो वो बच्चों पे अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है। तो उसमें में बहुत कुछ चीजें करनी होती है, और एक्टिव और अच्छा भी लगता है कि नहीं बच्चे अपन को अच्छा फॉलो करे, अपना स्टाफ भी अपन को फॉलो करे। और फिर पेरेंट्स आके अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं कि नहीं नहीं हमारे बच्चा तो ऐसे बहुत कुछ सीखा। जैसे मैंने बताया कि प्रिपरेटरी क्लासेस मैंने खोली, शायद बताया या नहीं बताया नहीं, तो प्रिपरेटरी क्लासेस में बच्चों को प्रिपेयर करती थी फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए। कि जयपुर में बड़ी स्कूलों में नर्सरी एलकेजी प्रेप नहीं हुआ करते थे, तो उसके लिए जब मैं प्रिपेयर करने लगी तो मेरे बच्चों का माई ओन स्कूल से बहुत सारे एडमिशन होने लग गए। तो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे बिजनेसमैन के बच्चे, सिर्फ उनके बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए वो मेरे स्कूल में आते थे। हालांकि स्कूल उस टाइम पे इतनी फैसिलिटी नहीं थी, 3 रूम 4 रूम्स, फिर धीरे धीरे तो मेरे हस्बैंड ने बहुत सारे रूम से रूम बनाते गए। आज हमारे स्कूल में इतने सारे रूम्स है कि 100 रूम्स होंगे, बड़े बड़े हॉल है,
बहुत बड़ा प्लेग्राउंड, गार्डन, सब कुछ है, लेकिन उस टाइम पे, लेकिन वो स्टडी की वजह से सारे अच्छे, मतलब जयपुर के टॉप जेंट्री मेरे पास आते थे पढ़ने के लिए, मैं उनको तैयार करती थी। और वो अभी भी जब मिलते हैं, वो बच्चे मिलते हैं, तो इतने रिगार्ड्स करते हैं, पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो आप किसी को कुछ दोगे तो आपको रिस्पेक्ट तो मिलेगा ही, तो उसमें और भी ज्यादा अच्छी खुशी होती है कि नहीं, ये बड़ा रिस्पेक्टफुली काम है। बच्चे आज भी जब इतने बड़े हो जाते हैं तो जो संस्कार मैंने उनको दिया, तो वो अभी भी पैर आके छूते हैं। नहीं तो बच्चे हाय हेलो अमेरिका चले गए, अब क्या मैम कौन सी होगी, पैर छूने की क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ बच्चे अच्छे, और बहुत कुछ मतलब इसमें सीखने मिल रहा है। लेकिन कविता जी आप ही बतावें, और कुछ पूछना चाहेंगे? मैं ही बोले जा रही हूँ। Ari, we have a lot of questions for you, ma'am. So another question is like, what are your thoughts on the new education policy 2020 जो अभी भारत सरकार ने बाहर करी है, उस पे आपके व्यूज क्या है? ये मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि ये जो बड़ी स्कूल्स थी जो हम प्रिपेयर करते थे बच्चों को, विद्याश्रम, एमजीडी, जैसे मैंने बताया जयपुर में, तो हम लोग प्रिपेयर करते थे, और पेरेंट्स को भी बड़ा टेंशन लेना पड़ता था कि पहले छोटे स्कूल में भेजो, फिर उनके एडमिशन के लिए तैयारी करवाओ, बड़े टेंशन में रहते थे। तो अब सभी स्कूल में नर्सरी एलकेजी प्रेप खुल जाती है, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में तो नर्सरी एलकेजी प्रेप में बच्चों को भेजते नहीं, सीधा फर्स्ट स्टैंडर्ड से बच्चे को भेजते हैं, यानी बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए और तब। लेकिन आज के टाइम पर बच्चे इतने एक्टिव और इतने इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनका वो टाइम वेस्ट होता है, वो घर में रहते हैं। फिर गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे जो भी गवर्नमेंट नर्सरी एलकेजी प्रेप नहीं है, तब तक वो फिर इधर उधर खेल रहे हैं, उनके मम्मी पापा जॉब कर रहे हैं, तो घर पे भी उनकी प्रॉपर केयर नहीं हो पा रही है। और अब ये स्कूल, इस जो सिस्टम है, इसमें नर्सरी से ये लोग चालू करेंगे, गवर्नमेंट में भी नर्सरी एलकेजी एंड प्रेप भी चालू होगी। उससे क्या है कि सबको बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा, बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होएगा, और फर्स्ट में आते आते तो बच्चे बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, इवन रीडिंग वगैरह सब कुछ सीख लेते हैं। तो ये इनका जो स्पेशल टाइम है अच्छा यूज हो जाएगा, पेरेंट्स को भी अच्छी हेल्प हो जाएगी कि नहीं हमारा बच्चा एक्टिव है। नहीं तो अब ज्वाइंट फैमिली में रहते नहीं है, कौन टाइम देगा बच्चे को। तो ये बहुत अच्छा है, आगे जाके भी ये बहुत अच्छा रह सकता है, ऐसे ही होना चाहिए। बाकी तो देखो गवर्नमेंट की आगे क्या पॉलिसी होती है, वो तो कविता जी बाद में की बात है। और जैसे आप कभी इंटरव्यू लेते हैं टीचर्स का, तो आप कौन सी क्वालिटीज देखते हैं कि भाई ये मेरे स्कूल के लिए शिक्षक सही रहेंगे? आप जब भी आपके रिक्रूटमेंट होगी तो आप स्पेसिफिक क्या क्वालिटीज टीचर में देखते हैं? कि जैसे उनकी पढ़ाई, उनका नेचर, क्या लाइक हाँ, आप क्या देखना चाहते हैं कि कैसे आदर्श शिक्षक आप, मतलब कैसे आपको लगता है कि ये कैंडिडेट सही है मेरे स्कूल के लिए? नेचुरली उनका मतलब एजुकेशन तो मैं देखती हूँ कि वेदर दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो वेदर दे आर स्पीकिंग इंग्लिश और नॉट, एंड इफ दे आर स्पीकिंग हिंदी तो करेक्ट हिंदी ऑल्सो, हिंदी ऑल्सो इट्स वेरी टफ लैंग्वेज, तो वेदर दे आर व्हाट द वे, कैसे वो खड़े रह रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। जाती दफा भी मैं देखती हूँ कि गई है टीचर तो ये कैसे जा रही है, आके बैठी तो किस हिसाब से, ये आंख मिला के अच्छी तरह बात कर रही है कि नहीं, ये हार्ड वर्किंग होगी कि नहीं। अदरवाइज मेरे पास कई टीचर ऐसी आती है बहुत अच्छी, मेवो से कहाँ से पढ़ी हुई आती है। हालांकि जहाँ पे मैंने स्कूल खोला है वो श्यामनगर बहुत अच्छी जेंट्री है, तो अच्छी जेंट्री की टीचर सारी आती है। तो मैं देखती हूँ कि नहीं, तो फिर छोटे बच्चों के लिए या कुछ बच्चों के लिए, मतलब जैसे 5th 6th 7th तक तो बहुत केयर करनी होती है। नहीं नहीं, इसने बहुत ये कर नहीं पाएगी। मुझे लगता है बच्चा बोलेगा मैम प्लीज ओपन द बॉटल, एंड बोलेंगे खोल लो, वो ऐसे बोलेगी तो फिर बच्चे, तो मैं ये भी देखती हूँ कि साथ साथ में हार्ड वर्किंग भी है कि नहीं है। और स्टडी तो ठीक है, वो तो जरूरी है, लेकिन ये इसका अंडरस्टैंडिंग पावर बच्चे को पूरा समझ पाएगी कि नहीं, और इसका पढ़ाने का जो डेमो डेमो हम लेते हैं तो वो कैसे पढ़ा रही है एक टॉपिक को। जैसे बच्चे को मात्राएं सिखानी है हिंदी में, तो छोटा ऊ, तो देखो छोटा ऊ की मात्रा, ये छोटा ऊ की मात्रा है ना, तो छोटा ऊ पीछे ही है, तो इसकी मात्रा जीरो बना के अंदर की तरफ जाएगी, लेकिन बड़े ऊ की तो बाहर आती है, क्योंकि बड़ा ऊ में छोटा ऊ बना के फिर एक बाहर भी इसके ऊपर अपन एरो बनाते हैं, ये बड़ा ऊ की मात्रा होती है। और ऊ मतलब आप मात्रा कहाँ लगाते हो, व्यंजन तो स्वर ही होते हैं, क ख ही बोलते हैं,
लेकिन अपन गाना गाना पड़ता है इन व्यंजन लोगों को भी। तो अब क को गाना गाना है तो आ की मात्रा लगाएंगे तभी तो वो गाएगा का, ऐसे। ये मतलब एक मतलब मैं देखती हूँ कि कैसा एटीट्यूड है, कैसे समझा पाएगी, प्ले वे मेथड में पूरे एग्जाम्पल देगी कि नहीं देगी, वो सारा मैं पूरा देखती हूँ। और स्पेशली सबसे छोटे बच्चों के लिए तो हार्ड वर्किंग टीचर चाहिए ही चाहिए, साड़ी का पल्लू संभाल के बैठने वाली टीचर नहीं चाहिए। और हुक्म, आपके थॉट्स स्त्री सशक्तिकरण पे कैसे है, वुमेन एम्पावरमेंट में, और राजपूत लेडीज की सिचुएशन जो है आज के समाज में आपके व्यू में कैसी है? क्या वो चेंज हुई है पहले के टाइम से? और आपकी क्या सोच है इन पे कि हमको वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करना चाहिए? सभी लेडीज को आगे आना चाहिए। मैं तो ये बताऊंगी, लेडीज को ऐसे नहीं कि घर का ही काम करना, लेडीज है तो क्या खाना ही बनाएगी क्या, या झाड़ू पोंछा करेगी? लेडीज को भी सब करना है, बाहर की दुनिया भी देखनी है, कुएं के मेंढक बन के नहीं रहना लेडीज को, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि आपके हस्बैंड को भी सपोर्ट मिलता है, पूरा साथ देंगे, आप साथ में कंपनी दे रहे हैं, आपको भी मालूम रहेगा कि जॉब क्या चीज होती है, सारा कुछ आप समझोगे ये प्रॉब्लम, उससे अच्छा रहता है फैमिली में भी, और आगे आना चाहिए। पहले के टाइम में कहाँ लेडीज आगे आती थी, लेकिन अब राजपूत लेडीज देखो इतनी वंडरफुल, बल्कि राजपूत लेडीज और भी ज्यादा आ गई है, और कास्ट से ज्यादा, मतलब राजपूत लेडीज वंडरफुल, क्योंकि उनको था तो सही कि हम कुछ सीखें, लेकिन जब ये फैसिलिटीज और उनको आगे बढ़ने का मौका मिला, तो वास्तव में राजपूत लेडीज यहाँ जयपुर में देखो इतनी अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेस, और मोस्टली जो स्कूल्स है वो यहाँ पे जयपुर में तो राजपूत लेडीज ने बड़े बड़े स्कूल खोल रखे हैं। ब्राइटलैंड स्कूल, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल गर्ल्स, वो सुमेर सिंह, मिसेस सुमेर सिंह नवलगढ़ की कबरानी सा, वो, लेकिन हाँ अभी भी ऑफिस में बैठते हैं तो ऐसे सिर पे पल्लू लेके ही बैठते हैं, बट उनका कंट्रोल और सारा कुछ बहुत अच्छा, डिसिप्लिन वगैरह, उनका स्कूल बहुत अच्छी तरह वो संभाल रहे हैं। तो राजपूत लेडी में लगता है कि उनको मौका मिले तो बहुत कुछ कर सकती है, और अपने रिस्पेक्ट के साथ में, और उनसे काफी लोगों को बहुत कुछ सीखने भी मिलता है। हालांकि सभी कास्ट में, सभी में ये नहीं बताऊंगी कि वो ऐसे हैं, सभी लोग अच्छा करते हैं, लेकिन राजपूत लेडीज को जब मौका मिला तो वास्तव में वंडरफुल, वो बहुत अच्छा कर रही है, और करना ही चाहिए। अपना मतलब रिस्पेक्ट रख के अपनी जो डिग्निटी है मेंटेन करनी चाहिए। लाइक राजमाता को मैं हमेशा उनसे बहुत मतलब मुझे कुछ सीखने मिला, जब भी वो लंदन वगैरह जाते तो जींस टॉपर में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एनुअल फंक्शन में उनको बुलाया तो वो स्पीच दे रहे हैं एनुअल फंक्शन में, तो उन्होंने शिफॉन की साड़ी सिर पे पल्लू लेके, मतलब इस टाइप से। तो यहाँ का कल्चर और जयपुर का मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, और ये सब राजपूत लेडीज को आगे आना चाहिए और बहुत कुछ कर सकती है, और अदर कास्ट लेडीज को भी अच्छा मौका मिलना चाहिए, सभी को। अभी जैसे कोई ज्यादातर अभी भी कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो सोचते हैं कि बच्चियों को शायद कॉलेज ना कराएं और कॉलेज करा के हमको शादी करा देना चाहिए, और उनका कैरियर बनाने का मौका नहीं दिया जाता। और कई बार लड़की को अच्छा एजुकेशन मिलता है तो उनको फिर एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज कई बार काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो जाते हैं उनपे। तो उस पे आप क्या कहेंगे? जैसे आई नो दैट you are having a wonderful daughter-in-law. So how is your relation with her, and how do you want to convey the message to the society कि कैसे, how do we need to cultivate our daughters? देखिए कविता जी, ऐसा है कि टाइम के हिसाब से मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी लेडीज को चेंज हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं मदर इन लॉ बन गई तो वो मतलब मेरी डॉटर इन लॉ है उसको ही घर का सारा काम करना, दैट्स वेरी रॉन्ग। वैसे नहीं होना चाहिए। मैं ये सोचूंगी कि चलो ये मेरी डॉटर है तो वो घर में कैसे एंजॉय करेगी, उसको जो कपड़े पहनने हैं वो पहनेगी। बहू आई तो वो घूंघट क्यों निकालेगी? क्या वो कोई मतलब कुछ करके आई है क्या? गलत काम करके आई है जो घूंघट निकाले? या फिर वही क्यों मतलब सारा किचन का काम करे?
मैं करती, जैसे मदर इन लॉ पहले करती थी, बहू के आने के बाद में तो चाय भी बहू बना के देगी तो पियेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और टाइम के हिसाब से सबको चेंज होना चाहिए। हालांकि मैं आई तो इतना घूंघट निकाला सब कुछ, लेकिन टाइम के हिसाब से मेरी मदर इन लॉ ने मुझे अलाउ किया, उस टाइम की बात है। तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने मिला कि मुझे भी जब वो इतने चेंज हो गए तो मुझे तो होना ही चाहिए। और मेरे हस्बैंड भी मुझे मतलब ऐसे किसी चीज में ऐसे नहीं कि नहीं ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ, लेडीज जो काम कर रही है अपने रिस्पेक्ट अपनी डिग्निटी मेंटेन करके कर सकते हो आप, जो भी अच्छा लगे। और अभी मैं जब बाहर जाती हूँ तो मैं भी जींस टॉपर पहनती हूँ। तो फिर मेरी डॉटर इन लॉ ने, आजकल तो सभी लड़कियों को ये सब कपड़े पहनने का बहुत शौक होता है, खाने का शौक होता है, बाहर भी जाने का होता है, और काम करने का शौक थोड़ा कम होता है। लेकिन वो धीरे धीरे आप उनको साथ दोगे तो वो काम करने भी सीख जाएगी थोड़ा थोड़ा, और उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दो उनको। मतलब मैं तो बल्कि आज ये सबको ये बताना चाहूंगी कि जैसे अमिताभ बच्चन ने शादी हुई और उनके लिए फ्लैट खरीद लिया, और दोनों को, ऐश्वर्या को और अभिषेक को भेज दिया कि ये तुम्हारा फ्लैट है, चाबी लो और तुमको जैसे रहना है रहो। तो उससे क्या प्रेम भी बढ़ता है। यदि आप ऐसे कर सकते हो तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। और ऐसा नहीं हो सकता है तो आप घर में उसको पूरी फ्रीडम दो, डॉटर इन लो को अपनी बेटी की तरह रखो, और वो भी काम करे, आप भी करो, उसको भी जॉब करना अलाउ करो, और उसको जो पहनना जैसे रहना है ठीक है। अपने रिलेटिव्स आते हैं, मेरी डॉटर इन लो है, कोई कभी ऐसे हम लोग फंक्शन में जाते हैं, पूरा राजस्थानी पोशाक ज्वेलरी, हालांकि उसको शौक भी बहुत है और पहनती है, वैसे ही पूरा ट्रेडिशनल पूरा निभाती है। तो वो मुझे उसमें ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। और वैसे तो आप आके देखोगे घर में ऑल ऑफ सडन सरप्राइज तो बोलोगे अरे ये बहू है कि क्या है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब बहू को भी आप ऐसे रखना चाहिए। उन पेरेंट्स को क्या कहेंगे जिनको हमेशा अपनी लड़कियों की शादी कराने की पड़ी रहती है, उनको पढ़ने भी नहीं देते हैं? हाँ, उनको पढ़ने नहीं देते हैं और शादी के लिए एनकरेज करते हैं कि नहीं उनको अब ऐसे तुमने लगता है बहुत कि हो अभी गया। हमारे डॉटर है तो मतलब उनको ऐसे बोझ जैसा लगता है। आई मीन इतना कॉन्फिडेंट नहीं लगता। अगर लड़का होता है तो दे आर लाइक वाओ हमारा लड़का है। अभी तक भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं अंश तक कई फैमिलीज में ये मानसिकता रहती लेकिन है। कविता जी, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी ये चीजें कहीं कहीं गलत भी हो रही है, क्योंकि पेरेंट्स को ऐसे डेवलप करना है कि बॉयज को भी वैसे, अपन डॉटर के पीछे पड़ जाते हैं सही कि बात है। तुम ये डॉटर हो, तुमको ये नहीं करना, तुमको ज्यादा नहीं पढ़ना, और भाई है उसको पढ़ना। ऐसा क्यों, बिल्कुल दोनों को इक्वल रखो सही सही और बात उस ऐसे संस्कार दो साथ साथ कि नहीं है। तुम्हें भी घर देखना है, तुम्हें भी ऐसे मतलब पूजा करनी है। गर्ल्स ही क्यों पूजा करें, या बिल्कुल गर्ल्स ही क्यों सारा काम, दोनों को इक्वल तरीका से आगे बढ़ना है। तो फिर बिल्कुल उससे क्या है कि शादी भी जब होती है तो बॉयज में ऐसा ईगो प्रॉब्लम नहीं होता है कि नहीं दोनों साथ मिलजुल के काम करते हैं, दोनों अपना आपको, नहीं तो ऐसे ईगो प्रॉब्लम आ जाता है कि अच्छा वो तो इतनी ज्यादा पढ़ गई, मैं कम पढ़ा हुआ हूँ, हुक्म या हुक्म वो काम नहीं कर रही है। हुक्म। दोनों मिलके जो दोनों हाथ से ताली बजती है, तो ऐसी ट्रेनिंग अपन को बॉयज को देनी चाहिए। बॉयज को तो अपन देते हैं कम ट्रेनिंग जी और जी गर्ल्स को देते हैं ज्यादा। तो जी। फिर गर्ल्स, आज का टाइम चेंज हो गया तो वो कहाँ एडजस्ट होएगी गर्ल्स। हुक्म हुक्म। आई एम श्योर हुक्म पहले आप आपके ये मैसेज से काफी लोगों को अच्छा मिलेगा, एक नॉलेज, एक दिशा कि कैसे हम बच्चे और बच्ची में भेदभाव ना करें और दोनों बच्चे हैं उनको विकास होने का मौका दें। हुक्म, पूजा से याद आया कि आपकी कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है? मतलब आप डेली कोई किसी पर्टिकुलर भगवान की पूजा करते हैं या किसी गुरु जी को फॉलो करते हैं क्या? मतलब आपकी दिनचर्या क्या कैसी है? जैसे आप सुबह कितने बजे उठते हैं और आपका आध्यात्मिक या तो रिलीजियस दृष्टिकोण से आप किसको फॉलो करते अभी तो रिसेंटली मैंने श्री श्री रविशंकर जी को ज्वाइन किया है। हैं? एंड वैसे तो शुरू से ही मेरा, बचपन से ही मैं, हम लोग हमारे घर में पूजा पाठ सब लोग करते थे, तो ओके शुरू से ही ऐसे पूजा पाठ करने का बहुत शौक था। और भगवान में मानती भी थी कि नहीं अपन कुछ गलत काम करेंगे तो भगवान जी नाराज होंगे। तो मुझे ओके हरदम भगवान का डर रहता था, हरदम भगवान का कि नहीं किसी को झूठ, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना है, किसी की कोई चीज नहीं लेनी है, ओके सबको पूरा साथ देना। तो ये सब तो मेरा बचपन से डेवलपमेंट था। और उसके बाद में मैं जब ससुराल में आई तो मुझे ससुराल में भी ऐसे लगता था कि नहीं, मेरे फादर इन लॉ नहीं है और वो तो इतने बड़े थे, दानवीर थे, अभी कुछ उन्होंने छोड़ा नहीं है, लेकिन वो तो बहुत अच्छे महान है। तो मैं उनको मन ही मन में उनके लिए भी प्रे करती थी
कि आप जहां भी हो खुश रहो और मुझे आशीर्वाद देना। तो मुझे अच्छा लगता था कि जैसे मैं वैसे उनसे प्रे करती फादर इन लो को, हेवनली फादर इन लो को, तो भी वो अच्छा फील होता था। और सभी मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब घर में भी मैं पूजा पाठ टाइम पर करूं, ससुराल में तो मुझे तो बहुत अच्छा, ससुराल में भी इतना अच्छा, डे बाय डे एवरी ईयर सब कुछ अच्छा। आगे जब कभी मैं सोचती नहीं थी कि ये मुझे चाहिए, नहीं सोचा, वो भी सब कुछ मिलने लगा धीरे धीरे। तो मेरा तो भगवान में और भी आस्था बढ़ती गई। कोई और विशेष भगवान की रोज पूजा करते हैं आप? जैसे किसकी? गणपति जी की या सरस्वती जी की डेली डेली पूजा करते हैं आप? गणपति जी की मुझे पूजा करना कभी अच्छी नहीं लगी, अब अच्छे लगते हैं, पहले मैं नहीं करती थी। और पहले बस मुझे तो राधा और कृष्ण, बस राधा कृष्ण। और कृष्ण को बोलती थी देखो राधा जी देख रहे हैं, और राधा जी को बोलती थी देखो कृष्ण जी आपको देख रहे हैं। और बस राधा बनने का शौक, कृष्ण बनने का भी शौक नहीं। हम दोनों बहनें, तो मेरी छोटी बहन कृष्ण बनती थी, मैं राधा बनती थी। और मुझे राधा जी की तरह बैठना उठना देखना सारा कुछ मुझे अच्छा लगता था कि राधा जी है। तो वो राधा जी, उसके बाद में मेरी लाइफ में पता नहीं ऑल ऑफ सडन हनुमान जी भगवान कैसे आ गया, किसी ने मुझे गाइड किया। और फिर मुझे तो उठते बैठते हनुमान जी भगवान, और उनको मैंने भाई बना लिया, हनुमान जी को मेरे भाई। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं उनको जब भी बात करती हूँ मेरे भाई के हिसाब से बात करती हूँ कि मुझे मतलब ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरी गलती है सब कुछ। तो मेरा मुझे लगता है कि हनुमान जी से बात करती हूँ, सारा कुछ हो रहा है, बस बिल्कुल, नथिंग। आस्था तो हुक्म भगवान पे होनी चाहिए। हुक्म, आप आपकी दिनचर्या के बारे में बताएं। सुबह आप कितने बजे उठते हैं? फिर ब्रेकफास्ट का क्या टाइमिंग होता है? स्कूल में कितने घंटे बिताते हैं? डिनर कितने बजे लेते हैं? फैमिली टाइम कितने बजे होता है आपका? सुबह में जल्दी उठ जाती, जल्दी उठ के जब तैयार होके पूजा पाठ करके जाते हो बाहर, स्कूल गार्डन में घूम रहे हो, बच्चों का वेट कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मन इतना अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी, गार्डन देख रहे हो, बच्चों का अराइवल, आप, मैं उनका वेलकम करती हूँ मॉर्निंग में। लाइक गार्ड खड़ा रहता है गेट पे, लेकिन मैं भी गेट पे खड़ी हो जाती हूँ, वेलकम करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। स्कूल में पूरा राउंड लगाना बहुत अच्छा लगता है, टीचर क्या पढ़ा रही है, कौन सा बच्चा कैसे देख रहा है, और बच्चे कई बार बोलते हो मैम यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे, ऐसे सब इतने कमेंट्स और सारा कुछ, बड़े बड़े एंजॉय करती स्कूल टाइम पे। मनोक्लोक हो जाता, मतलब ब्रेकफास्ट मेरा बीच में है, ऑफिस में ही कुछ हल्का ले लिया मैंने, ब्रेड, और चाय पीने का मुझे शौक, तो मैं चाय काफी ले लेती हूँ ऑफिस में। एंड उसके बाद में छुट्टी होने के बाद में, सारे बच्चों का डिपार्चर होने के बाद में मैं लंच करती हूँ, हमारे मतलब मेरी डॉटर इन लो एंड मेरा बेटा, अब मेरे हस्बैंड भी अब जॉब नहीं करते हैं, तो हम सभी मिलके लंच करते हैं। फिर आफ्टरनून में थोड़ा बहुत नींद ली तो ली, अदरवाइज हम लोग जैसे स्कूल के बारे में ही मैं तो ज्यादा सोचती हूँ, मेरा बेटा भी अभी स्कूल में ही है, एंड स्कूल के बारे में सोचते हैं। फिर शाम को थोड़ा सा मनोरंजन है ऐसा कुछ, और डिनर हम लोग जल्दी ले लेते हैं, लाइक 7 o'clock, 7 और 8 के बीच में डिनर हो जाता है। और अभी तो लॉकडाउन भी है, तो हम लोग प्लेइंग कार्ड, ताश वगैरह फैमिली के साथ में प्लेइंग कार्ड खेलते हैं। मेरी दो छोटी मतलब ग्रैंड डॉटर्स है, तो वो भी बड़ा एंजॉय करती है ना। फैमिली में हम मतलब 6 मेंबर है, बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं, अच्छी तरह रहते हैं, अच्छा टाइम पास होता है। और वही सोते सोते भी स्कूल सोचते हैं, सुबह उठ गए, स्कूल नहीं होता तो उस दिन अच्छा नहीं लगता है, बड़े मतलब पूरे दिन भर पता ही नहीं चलता कि दिन छोटा है मेरे लिए, कि मैं बहुत छोटा है ऐसा लग रहा है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और जब से रविशंकर जी को ज्वाइन किया, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होती है। और पहले मुझे गुस्सा आता था, वो गुस्सा भी मेरा चला गया, और अब तो स्माइलिंग फेस से हंसते रहो बस, और काम करते रहो, तो हुक्म, आप बहुत अच्छा लगता है। जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? जो स्कूल खोलना चाहते हैं या शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, उनको आपका क्या संदेश है? और आपका सक्सेस मंत्र क्या है? आपकी जो सफलता है उसका क्या राज है? एक या दो लाइन में सक्सेस मंत्र, इफ यू कैन टेल, इट विल बी ग्रेट। ओके, मेरा क्या है कि मैंने तो हार्ड वर्क करके स्कूल को आगे लाया, और बच्चों पेरेंट्स को मतलब अच्छा रिजल्ट दिया कि नहीं, बच्चों को अच्छा इम्प्रूव किया, और काम साथ में, और ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो साथ में रख के हार्ड वर्क मेरे को बहुत मतलब सक्सेस है, और साथ में भगवान का डर। उसके अलावा जब फिर बेटा आ गया स्कूल के अंदर, तो उसने तो बहुत कुछ किया। मैं तो नर्सरी टू 5th तक स्कूल चला रही थी, बाद में धीरे धीरे बेटे ने सीबीएसई बोर्ड लिया, 10+2 किया,
और इतनी अच्छी मेरे हस्बैंड ने हेल्प करके सारी इतने मोर देन 100 रूम से भी अच्छे रूम्स बना लिए, गार्डन, कुछ लैंड्स ली। अभी एक लैंड्स और भी बहुत बड़ी कितने बीघाज में लैंड ली है, तो वो भी मतलब हम लोग चाह रहे हैं कि भगवान ने चाहा तो दूसरा स्कूल, ताकि उस एरिया वाले बच्चे भी मतलब उनको काफी दूर से हमारे स्कूल में दूर दूर से बच्चे आते हैं तो उनको नहीं आना पड़े। तो ये सारे है, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी मुझे ये कुछ करना है, लेकिन आगे से आगे ऑटोमेटिक हार्ड वर्क कर रहे हो और भगवान का साथ है तो मुझे लगता है कि ये सारा काम ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जा रहा है। तो सक्सेस मंत्र जैसे आपने कहा कि ऑनेस्टी के या तो भगवान से डर, अपने काम के प्रति आपका जो लगन है उसकी वजह से दैट इज द मेन आई गेस योर सक्सेस मंत्र आई बिलीव। और आने वाले जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनको आप क्या हिदायत या तो क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे, जो शिक्षा के क्षेत्र में आपके जैसे कुछ करना चाहते हैं, मे बी कोचिंग क्लास खोलना चाह रहे हैं या स्कूल खोलना चाह रहे हैं? हाँ, तो वो ये आपको सोचना है कि आपको कितना रिस्पेक्ट मिलने वाला है, आप कैसे काम करोगे। पहले आप ये सोचो कि नहीं आप कितना अच्छा काम करोगे और कितना सक्सेस, कितना हार्डवर्क कर पाओगे कि नहीं। ऑल द टाइम ये नहीं कि आप एयर कंडीशन ऑफिस में जाके बैठ गए और टीचर्स को आपने बता दिया कि आप ये काम कर लेना, ये पढ़ा देना सिलेबस। नहीं, आपको खुद को सब कुछ, इवन आपको यू शुड नो कि हाउ टू राइट कैपिटल ए, हाउ टू राइट स्मॉल ए, एवरीथिंग यू शुड नो इट, देन ओनली मतलब आप सक्सेस हो सकते हो। रूम की सफाई कैसे होती है, कौन से सिलेबस लगाने चाहिए, सारा कुछ इसके लिए बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो जो भी स्कूल खोलना चाहे पहले सारा कुछ सोच ले, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आती है। ऐसे आंख मीच के दूर के डूंगर दूर से ही अच्छे लगते हैं, ऐसे नहीं करना। उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है कि नहीं ये करना है, प्रॉब्लम आई तो इसको दूर करो और आगे बढ़ो, बिल्कुल बिल्कुल। तब तो आप सक्सेस हो सकते हो। मेरे पास कई लोग आते हैं सजेशन देने के लिए कि हमें स्कूल खोलनी है। मैं कहूँ स्कूल खोलने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि शुरू शुरू में आपको बहुत मेहनत करनी है और बाद में भी आपको ऐसे नहीं कि स्कूल अच्छा चल रहा है मेहनत करना या आपने सुपरविजन करना छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत तो लाजमी ये है। बहुत जरूरी है। कोई भी उस क्षेत्र में है, सो जैसे आपने कहा। सो अभी नेक्स्ट सेक्शन है हुक्म, उसमें हम आपके फेवरेट्स के बारे में बात करेंगे। तो आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा रेड कलर है, मुझे बहुत पसंद है, और वो चुंदड़ी, जयपुर की चुंदड़ी डिजाइन में रेड हो तो फिर तो कहना ही क्या। अच्छा, वेरी नाइस। मेरा सो माय फेवरेट कलर इज आल्सो रेड, सो सेम सेम पिच। फेवरेट सिटी? पार्डन? फेवरेट सिटी, शहर सिटी कौन सा? जयपुर। जयपुर। जयपुर, लव जयपुर। हुक्म हुक्म। एक्टर? एक्टर? एक्टर रेखा, रेखा। ओके। एंड स्पेसिफिक मूवी ऑफ रेखा जो आपको बहुत पसंद है? रेखा की वैसे मूवी मैंने काफी टाइम पहले कौन सी वाली देखी थी, नाम तो मुझे अब नहीं याद है। उमराव जान, उमराव। उमराव जान। हुक्म हुक्म। राइट। और आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? अब ऐसा वो फेवरेट सॉन्ग तो मुझे कोई फिल्मी गानों का ऐसा शौक नहीं है, भजन वजन का बहुत शौक है, क्योंकि वो हमको ब्रॉटअप ही ऐसा किया था स्टार्टिंग में कि नहीं भजन सीखने हैं, वो ये सब दादी सा स्ट्रिक्ट थे कि नहीं फिल्मी गाने क्या गा रहे हो। हुक्म। तो वैसे अभी गा लेती हूँ मैं फिल्मी गाने, लेकिन वो बात नहीं है जो भजन वगैरह, तो कौन सा भजन कविता। आपका फेवरेट है? वो राजस्थानी में है एंड देन गुजराती में भी है, तो आई डोंट थिंक कि पीपल विल अंडरस्टैंड गुजराती एंड राजस्थानी। That's fine, Hukum. You can sing in Rajasthani. It's all fine. I mean, people should hear that beautiful song like bhajan. Let's bhajan. एक दो लाइन सुना दीजिए हुकुम। ओ, मैं मीराबाई का सुना दूं? बिल्कुल बिल्कुल। मीराबाई को है ना ससुराल में सब टोकते थे कि ये क्या है सब, तो वो फिर है ना उनको वो राणा जी बोल रहे हैं कि वो एक लाइन सुनाती हूँ। राणा जी हुक्म बोलते हैं, वो बोलती है कि मेरे तो सभी जगह भगवान है। हुक्म। राणा जी बोलते हैं, थारा सामरानी मीरा निज राम बता दे, सामरानी मीरा
निजरा बता दे, नहींतर बाता थारी झूठी, नहींतर बाता थारी झूठी। रे राणा आबद नामी लागे मीठी। फिर मीराबाई जी बोलते हैं, मारो सांवरो राणा घट घट में व्यापे, मारो सांवरो राणा घट घट में व्यापे, थारी ही यारी क्या सूं फूटी, थारी ही यारी कासूं फूटी रे मेवाड़ी राणा, आबद नामी लागे मीठी। वेरी नाइस हुकुम, बहुत सुंदर मीरा जी का आपने भजन सुनाया, थैंक यू सो मच एंड यू सिंग रियली ब्यूटीफुली। तो कंटिन्यूइंग द फेवरेट वन, विच इज योर फेवरेट सीजन? आपको कौन सी ऋतु ज्यादा पसंद है? Summer. I Summer. like summer. अच्छा, Early morning, get up and walk and all these things. So I'm enjoying in summer. हुकुम। आपकी फेवरेट मूवी, आई थिंक उमराव जान यू सेड? Yeah. Yes. और फेवरेट डिश, खाने में आपको सबसे पसंद क्या चीज है? मालपुआ। ओहो, मालपुआ, वो भी गुड़ के मालपुआ। हुकुम, वेरी नाइस। एंड व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी? सो स्कूल के बारे में आप सोचते हैं, एजुकेशन के बारे में, उसके अलावा लाइक हॉबी क्या है आपके, शौक क्या है? सिंगिंग? उसके अलावा मुझे डांस करने का बहुत शौक है, डांस, हुकुम। और दुल्हन बनने का बहुत शौक है। दुल्हन जैसे कपड़े पहनना, दुल्हन की तरह रहना, बड़ी बड़ी नथ पहनना, ये बहुत सारी चूड़ियां पहनना, ऐसा मुझे बहुत शौक है। अभी भी मैं, आई एम 65 years एज, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वैसे बनूं दुल्हन की तरह, ये शौक है। और डांस करना तो एक बार कविता जी आप मुझे मिले थे, और मैंने वो आपको पूछा कि मैंने कैसा डांस किया, तो आपने बोला, बुआ सा आप मन से जैसा भी आप डांस करते हो आपको अच्छा लगना चाहिए, आपने मन से किया, इट्स अ वंडरफुल। तो मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखने मिला। डांस करना भी अभी अच्छा लगता है मुझे। Oh, that's so great, Hukam. That's really nice to hear. Dance is a great hobby and stress reliever. Next is आपका पसंदीदा त्योहार कौन सा है? मेरा नवरात्रा, वो भी स्पेशली गुजराती नवरात्रा। गुजरात में जैसे वो नवरात्रे होते हैं ना, और वो माता जी की आरती सुबह शाम गाना, और इतना अच्छा वाइब्रेशन आता है वो फेस्टिवल में। दशहरा है, तो नवरात्रि मतलब फेस्टिवल, आई लाइक इट। हुकम, आपकी स्कूल में बच्चे बहुत बड़े सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है। तो इसमें भी बच्चों को कैसे तैयार करना चाहिए अपन को, ये है मेरा सब्जेक्ट। That's wonderful. I enjoy. हुकम, और हुकम अभी ये कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो आप और आपका परिवार कुछ स्पेसिफिक रूटीन फॉलो करते हैं, या क्या मतलब सेफ रहने के लिए क्या फॉलो करते हैं? सो मे बी आपको सुन के दूसरे लोग भी उसको अडॉप्ट करेंगे। सो व्हाट इज योर रूटीन रिगार्डिंग कोविड? आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं? एक्चुअली ज्यादा जब से ये स्टार्ट हुआ मैं कहीं सिटी में गई नहीं हूँ, कहीं नहीं गई। एक दो बार कहीं जाना पड़ा मुझे, तो मैं मतलब कार में गई हूँ, आई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि मैं कहीं टच नहीं हुई। फिर भी मुझे है ना, हाथ धोने का, तो हाथ तो धोने ही है, सैनिटाइजर यूज करना है ये। और कपड़े भी मैं चेंज, बाहर गई तो मैं कपड़े भी चेंज दूसरे पहनती। और यहाँ इवन घर में भी बहुत बड़ा गार्डन है, सारा कुछ, तो गेट भी मैंने खोला है, तो मुझे हाथ धोने हैं। मैं तो इतनी पर्टिकुलर हूँ। और मेरे हस्बैंड के लिए वो थोड़े वैसे भूल जाते हैं, लेकिन उनके लिए भी मैं फॉलो करती हूँ, साथ साथ रहती हूँ कि नहीं हाथ धोने हैं, ये रखो, ये मास्क चेंज करना है। वो बहुत हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। इवन सर्वेंट लोगों को हम गाइड करते हैं। और स्कूल में इन सब जगह, अभी तो खैर स्कूल की छुट्टियां हैं, लेकिन जो भी कोई स्टाफ कभी आ जाता है मिलने के लिए या बाईजी वगैरह, तो सबको मतलब गाइड कर रखा है कि नहीं ऐसे रहना, दैट इज गुड फॉर यू एंड गुड फॉर मी ऑल्सो। तो ये तो जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल।
थैंक यू सो मच हुकम, आपने इतना टाइम दिया और इतने सारे हमारे ढेर सारे क्वेश्चंस के आंसर कर इतने खुले दिल से हमारे साथ आपकी जो भी यात्रा रही है स्कूल शुरू करने की और जो भी आपको संघर्ष हुए वो इतने खुले दिल से आपने हमारे साथ शेयर किए, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू कविता जी। मैं आशा रखती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जॉय ऑफ शेयरिंग से कनेक्टेड रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो से आप मिस आउट ना हो जाएं। थैंक यू सो मच।